Good morning, students. Today we will start a chapter from your MCB book, Living English from Ratna Sagar, Class 6. The chapter name is In Father's Presence means पिताजी के उपस्थिति में. सबसे पहले जानेंगे एपोस्ट्रॉफी एस जो लगा है हमारा फादर्स में. सो एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का, के, की. इसका मतलब है इन में. फादर्स यानी पापा के उपस्थिति यानी प्रेजेंस, पापा के उपस्थिति में. This extract is from Swami and Friends, a popular children's book by the well-known writer R.K. Narayan. Means this is an extract taken from a novel written by R.K. Narayan, and the novel name is Swami and Friends. And R.K. Narayan mainly write many children's books. She has written many novels, and this extract is from that. This is a story about Swaminathan. His nickname was Swami, and he was 10 years old. His nickname was Swami, and his everyday adventures in the fictional town of Malgudi. And this story is about the adventures of Swami. Means the novel was all about Swaminathan's adventure with his friends. But this extract is all about the mathematics, the fear of mathematics. Means Swami was very less interested, means she was not interested in maths at all. She was totally confused in solving the questions. So this story is about how Swami's father pressurized him to solve a question of mathematics. This story is all about that. In this story, Swami is having his summer holiday, and his thinking was that in summer holidays the children don't study. The summer holiday is all about having fun with the friends, wandering here and there, and not studying. So come to the story. How many days is it since you have touched your books? The father is asking, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें बुक्स को टच किए हुए? Father asked as he blew off the fine layer of dust on Swaminathan's book and cleared the web that an industrial spider was weaving between a corner of the table and the pile of books. पापा ने इसलिए उससे पूछा कि कितने दिन हो गए हैं तुम्हें पढ़ाई किए हुए, क्योंकि जब उसने उसका बुक उठाया तो उसके ऊपर डस्ट पड़े हुए थे. उसके बुक्स के पास स्पाइडर्स यानी मकड़े ने अपने वेब्स जाले बना के रखे हुए थे. तो इससे यही पता चलता है कि अगर हमारे घर पे भी बहुत दिन से कोई सामान रखा हुआ है तो आप खुद देखोगे कि उसके ऊपर डस्ट हो जाते हैं, या फिर कोई रूम में अगर हम नहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी स्पाइडर्स, अगर कोई रूम का कोना है वहाँ पे हम यूज़ में नहीं लाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, स्पाइडर्स अपने वेब बना देते हैं. तो फादर को इसी से पता चला कि जो स्वामी है बहुत दिन से पढ़ाई नहीं किया है, क्योंकि हर जगह मकड़ी के जाले हैं जहाँ पे उसके बुक्स कॉपीज़ थे और उसके बुक्स कॉपीज़ के ऊपर पूरा डस्ट पड़ा हुआ था. स्वामीनाथन viewed this question as a gross breach of promise. ग्रॉस ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मीन्स लगता है जैसे उसका खुद का प्रॉमिस टूट रहा था, क्योंकि स्वामीनाथन ने प्रॉमिस किया था कि वो समर हॉलीडेज़ में तो नहीं पढ़ने वाला है. लेकिन पापा का ये क्वेश्चन सुन के कि कितने दिन से पढ़ाई नहीं किया है, मतलब पापा ये कहना चाह रहे हैं कि चलो पढ़ाई करो. और स्वामीनाथन ने तो डिसाइड किया हुआ था, स्वामीनाथन को तो लग रहा था ये तो समर हॉलीडे है और समर हॉलीडे मीन्स हैविंग ओनली फन. Should I read even when I have no school?
क्या मुझे पढ़ना चाहिए जब मेरा स्कूल नहीं है फिर भी? डू यू थिंक यू हैव पास द BA? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने BA पास कर लिया है? हैव यू पास द ग्रेजुएशन? फादर आस्क्ड, पापा ने पूछा। BA मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स। जब आप लोग कॉलेज में जाओगे ना तो आप लोग BA मीन्स अलग अलग स्ट्रीम्स में जाओगे। अभी आप लोग बहुत छोटे हो उसके लिए। I mean father, when the school is closed, when there is no examination, even then should I read? मेरा मतलब है पापा कि जब स्कूल बंद है, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, फिर भी मुझे पढ़ना चाहिए। What a question, you must read. उसके पापा ने बोला ये कैसा क्वेश्चन है, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। But father, you said before the examination that I need not read after they were over. लेकिन पापा आपने ही तो कहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो मत पढ़ना, अभी तो पढ़ लो। As he uttered the last sentence, he tried to believe it. He clearly remembered Rajam's complaining bitterly of a home. But father, you said before the examination I need not read after they were over. Even Rajam does not read. As he said this sentence, even Rajan does not read. राजन भी तो नहीं पढ़ता है। ये बात उसने बोली और वो चुप हो गया और वो धीरे हो गया, धीरे धीरे बोला, क्योंकि उसे याद आ गया था कि राजम जो है वो भी यही बात बोलता है और उससे पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसके घर में होम ट्यूटर आते हैं और उसे 2 घंटे पढ़ाते हैं, वीक में 3 दिन आते हैं और उसे पूरा पढ़ा कर ही जाते हैं। इसीलिए वो अपनी बात को किसी तरीके से दबा दिया, वो ज़ोर से नहीं बोल पाया क्योंकि उसके दिमाग में अचानक से ये बात क्लिक कर गई कि उसे तो होम ट्यूटर पढ़ाने आते हैं। अगर मैंने बोला पापा को तो शायद मुझे भी होम ट्यूटर ना रख दे और फिर मेरी तो बैंड बजने वाली है। फादर वॉज अपरेंटली डेफ टू स्वामीनाथन्स रिमार्क। और स्वामीनाथन ने जो भी कुछ बोला उसके फादर ने बिल्कुल इग्नोर किया। उन्हें कुछ भी सुनना ही नहीं था क्योंकि बस उन्हें चाहिए था कि वो पढ़े। He stood over Swaminathan and set him to dust his books and clean his table. वो स्वामीनाथन के पास गए, खड़े हुए और बोले कि अपना जो ये बुक पे डस्ट है और जो टेबल है वो सबको अभी क्लीन करो। Half an hour later, Swaminathan sat in his father's room in a chair with a slate. और थोड़ी देर के बाद मीन्स आधे घंटे के बाद सफाई करने के बाद स्वामीनाथन जो है अपने पापा के रूम में गया, चेयर पे बैठा और स्लेट लेकर, यानी स्लेट लेकर अपने पापा के रूम में गया। अभी आप लोग सोचो कि स्लेट क्या होता है। स्लेट इज़ लाइक ब्लैक बोर्ड बट इट इज़ स्मॉलर इन साइज़। जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम लोग चॉक से लिखते हैं, इरेज करते हैं, उसी तरीके से पहले जो बच्चे हुआ करते थे वो भी स्लेट पे ही पढ़ाई लिखाई शुरू किया करते थे और शायद बहुत बड़े तक वो लोग स्लेट यूज़ किया करते थे। अब के बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली कॉपीज़ और पेंसिल से ही यूज़ करते हैं। इन हिज हैंड एंड पेंसिल रेडी, और उसने स्लेट और पेंसिल हाथ में लिया। फादर हेल्ड द अरिथमेटिक बुक ओपन एंड डिक्टेटेड, और फादर ने मैथ्स के बुक हाथ में लिए और क्वेश्चन बोलना शुरू किया, समझाना शुरू किया। रामा हैज़ 10 मैंगोज विथ विच ही वॉन्ट्स टू अर्न 15 एनल्स। राम के पास 10 आम हैं और उस 10 आम को बेच के उसे 15 एनल्स कमाना है। एक एनल्स का मतलब हो गया 6.25 मीन्स 10 एनल्स का मतलब क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10। 15 एनल्स का मतलब क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 15। तो उसे 10 आम बेच के 15 एनल्स कमाने थे। इट मीन्स एक आम का दाम कितना होगा उसी हिसाब से आपको निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है, आप ही कर सकते हैं। यहाँ पे उसके फादर ने स्वामी को दिया है। स्वामीनाथन गेज्ड एंड गेज्ड एट दिस सम, और स्वामीनाथन देखे जा रहा है उस सम को जो उसके पापा ने उसे बनाने के लिए दिया था। एंड एवरी टाइम ही रीड इट इट सीम टू अक्वायर अ न्यू मीनिंग, और जितनी बार वो उस सम को देखता था उतनी बार उसे अलग अलग मीनिंग समझ में आता था। ही हैड द फीलिंग ऑफ हैविंग स्टेप्ड इनटू द फियरफुल मेज, और अब उसे लग रहा था कि वो किसी डरावने सपने में आ गया है। His mouth began to water at the thought of mangoes. मैथ्स तो बनाने थे लेकिन उसके दिमाग में मैंगोज आ रहे थे, आम आ रहे थे और उसके मुंह से पानी आ रही थी, यानी लालच आ रहा था उसे मैंगो के नाम पे। He wondered what made Rama
फिक्स 15 एनस फॉर 10 मैंगोज। उसने मीन्स सम तो पापा ने दिया है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी खुराफाती चल रही है, उसके दिमाग में बहुत सारे बात चल रहे हैं कि बहुत मैंगोज़ है, उसके मुंह में पानी आ रहे हैं और वो ये सोच रहा है कि राम को क्या ज़रूरत थी इतने पैसे लेने की, बस 10 आम के लिए इतना ज़्यादा पैसा। वॉट काइंड ऑफ अ मैन वॉज राम माँ एंड रामा कैसा आदमी था, इतना महंगा आम कौन बेचता है। प्रोबेबली ही वॉज लाइक शंकर, शायद वो शंकर के जैसा होगा। शंकर वॉज स्वामीज फ्रेंड, मे बी ही वॉज ऑल्सो ग्रीडी, सो ही वॉज कंपेयरिंग रामा विथ शंकर। शायद वो भी रामा के जैसे ही होगा, जैसे ये इमेजिन कर रहा है कि रामा बहुत ज़्यादा ग्रीडी है इसीलिए इतने महंगे दर पे आम को बेच रहा है, तो वो रामा से ही शंकर को कंपेयर कर रहा है। Somehow one couldn't help feeling that he must have been like Shankar with his 10 mangoes and his iron determination to get 15 annas। जिस तरीके से शंकर जिद्दी है उसी तरीके से ये रामा भी है, इसने तो एकदम ठान लिया है कि वो 15 एनस ही पे 10 मैंगोज को बेचेगा। इफ़ रामा वॉज लाइक शंकर, कृष्णा मस्ट हैव बिन लाइक द पी। और एक तो उसका फ्रेंड शंकर था और दूसरा था पी, तो पी जो था वो शायद बहुत ज़्यादा सीधा था, इसीलिए उसने कृष्णा को पी माना है, कृष्णा से को पी से कंपेयर किया है। Here स्वामीनाथन felt an unaccountable sympathy for कृष्णा। यहाँ पे जो स्वामीनाथन यानी स्वामी थे उसे सिंपथी दिख रही थी कृष्णा के लिए, यानी कृष्णा के लिए वो दया दिखा रहा था कि कृष्णा बेचारे को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये जो रामा है ये तो कृष्णा से बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है। हैव यू डन द सम फादर आस्क्ड, और वो तो अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा था स्वामी, उसे सम्स को देखना था, लेकिन वो सब कुछ सोच रहा था उस सम को सॉल्व करने के अलावे कि रामा ग्रीडी है, पी बहुत ज़्यादा शरीफ है, उसी के जैसा आपका कृष्णा है, तो शंकर के जैसा रामा है, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। उतने में ही पापा ने पूछा कि क्या तुम्हारा सम बन गया। लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग, और सामने में ही वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो न्यूज़पेपर को थोड़ा नीचे करके और उधर देख के उन्होंने बोला कि तुम्हारा सम जो है वो कंप्लीट हुआ। फादर विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वर राइप नाउ, हियर इज़ द फन। यहाँ पे आपको सम सॉल्व करने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे उसका दिमाग क्या चल कि मैंगो जो है वो कच्चा है या पका हुआ है। मीन्स सम से ये कहाँ से रिलेट कर रहा है कि आम पका है या कच्चा है। क्या कच्चे आम और पके आम जान लेने के बाद आपका सम बन जाएगा? लेकिन यहाँ पे जो स्वामी था उसे यही लगता था कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि आम पके हैं या कच्चे हैं तो सम्स तो वो आराम से सॉल्व कर लेगा। Father regarded him for a while and smoothing a smile remarked, और जो पापा हैं वो तो सब बात जान रहे थे कि इसे मैथ्स पढ़ने में अभी बिल्कुल पढ़ाई में तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, वो हंसे जा रहे थे, लेकिन इस तरीके से हंस रहे थे ताकि सामने वाले को यानी स्वामी को दिखे ना, समझ में ना आए। डू द सम फर्स्ट, आई विल टेल यू वेदर द फ्रूट्स वर राइप और नॉट आफ्टरवर्ड्स। पहले सम बनाओ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो फ्रूट्स थे, जो मैंगोज थे वो पके हुए थे या नहीं पके हुए थे। स्वामीनाथन फेल्ट अचरली हेल्पलेस, और स्वामीनाथन को अब कोई भी मदद नहीं नज़र आ रही थी, वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था। इफ़ ओनली फादर वुड टेल हिम वेदर राम वॉज ट्राइंग टू सेल राइप फ्रूट और अनराइप। उसने बोला यदि मुझे पापा बता देते कि राम जो है वो राइप फ्रूट बेच रहा था या अनराइप, कच्चे फ्रूट बेच रहा था या पके हुए, तो शायद मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता। Of what avail would it be to tell him afterward? और बाद में बता के क्या कर लेंगे, जब मुझसे भी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा तो बाद में क्यों बताना, क्योंकि अभी बताते तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। He felt strongly that the answer to the question contained the key to the whole problem. उसका ऐसा मानना था कि अगर मुझे पता चल जाए कि आम कच्चे हैं या पके हैं तो शायद वो पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ले। It would be scandalous to expect 15 annas, और ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है और बहुत ही मुझे शॉकिंग लग रहा है कि 10 आम के लिए 15 एनस राम ले रहा है, और वो भी कच्चे आम के लिए।
But even he did it would be unlike Ram, whom Swaminathan was steadily beginning to hate and invest with the darkest qualities. और वो सोचते सोचते राम के बारे में बिल्कुल बुरा ही सोच रहा था, क्योंकि उसने 15 एनस की बात की है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था कि ये बहुत ही गंदा है, ये बहुत ही बुरा है, उसे इतना पैसा नहीं लेना चाहिए 10 आम के लिए, 15 एनस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बिल्कुल भी बुरा इंसान है। मीन्स उसके बारे में जितनी भी गलत बातें थी वो अपने दिमाग में ला रहा था। फादर आई कैन नॉट डू द सम, उसने फिर बोला पापा मैं ये सम को नहीं कर सकता। स्वामीनाथन सेड पुशिंग अवे द स्लेट, और अपना स्लेट जो है वो पापा की तरफ घसका के रख दिया, यानी उधर शिफ्ट कर दिया। What is the matter with you? क्या बात है, क्या हुआ है तुमको? You can't solve a simple problem in simple proportion. तुम इतना सिंपल सा सॉल्यूशन नहीं बना सकते, इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है ये तुम नहीं कर सकते। We are not taught this kind of things in our school. और उसने बोला कि हम लोग जो हैं, हम लोगों के स्कूल में ऐसी पढ़ाई तो हुआ ही नहीं करती थी। Get the slate here, यहाँ लेकर आओ स्लेट को। I will make you give the answer now, और मैं तुम्हें आंसर दूंगा। I will make you give the answer now. स्वामीनाथन waited with interest for the miracle to happen. और स्वामीनाथन वेट कर रहा था कि शायद कोई जादू हो, मुझे पापा ये बता दे कि मैंगो कच्चे थे या पके थे, तो शायद मैं सॉल्यूशन बना सकूं। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड, और फिर से पापा ने उस सम को पढ़ा और स्वामी से पूछा व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 मैंगोज, मुझे बताओ 10 आम के कितने दाम हुए। स्वामीनाथन लुक्ड ओवर द सम टू फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सम कंटेंट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, और स्वामीनाथन फिर से क्वेश्चंस को देखने लगा और सोचने लगा कि कौन से पार्ट में मुझे आंसर मिलेगा। और जब देखा उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने पापा को क्या बोला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू सीम टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इडियट, तुम बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हो, पापा ने उसके स्वामी से कहा। नाउ रीड द सम, चलो शांति से सम को पढ़ो। कम ऑन, हाउ मच डज राम एक्सपेक्ट फॉर 10 मैंगोज, राम को 10 आम के कितने चाहिए। 15 एनस ऑफ कोर्स, स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन अपने में ही सोच रहा है कि बोला तो है वो कि 15 एनस ही लेगा, बट हाउ कुड दैट बी इट्स प्राइज, लेकिन इतना कैसे ले सकता है, 15 एनस बहुत ज़्यादा नहीं है। इट वॉज वेरी वेल फॉर रामा टू एक्सपेक्ट इट इन हिज एवायरस, और ये बहुत बुरा, ये बिल्कुल ग्रीडी है, ग्रीडी यानी मीन्स लालची, लालच में इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना महंगा फल नहीं बेचना चाहिए। बट वॉज इट द राइट प्राइस, क्या ये सही प्राइस है, इतना होना चाहिए। एंड देन देयर वॉज द ऑब्सक्योर पॉइंट वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट, और फिर से वो अपने बात पे आ गया कि जो आम है वो पके हैं या कच्चे हैं। मीन्स ऑब्सक्योर पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो सोच रहा था कि अगर बात बता दिया जाए कि वो आम पके हैं या कच्चे हैं तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। इफ़ देयर वर राइप 15 एनस माइट नॉट बी एन इम्प्रॉबेबल प्राइज, बोल रहा है अगर पके हुए आम रहेंगे तो शायद 15 एनस उतना ज़्यादा नहीं है। बट इफ़ ओनली ही कुड गेट मोर लाइट ऑन दिस पॉइंट, लेकिन अगर वो कच्चे रहे तो ये बहुत ज़्यादा दाम है। और ये बार बार उसी बात पे अड़ जा रहा था, उसी बात को सोच रहा था, उसे यही लग रहा था कि उसे पता चल जाए कि ये आम पके हैं या कच्चे हैं तो शायद उसका सॉल्यूशन निकल जाए। हाउ मच डज राम वांट फॉर हिज मैंगोज, बताओ मुझे राम को कितने मैंगोज, कितने पैसे चाहिए होते उसके मैंगोज के लिए। स्वामी ने बोला 15 एनस, रिप्लाइड स्वामीनाथन विथ कन्विक्शन। पहले तो वो सोच रहा था, लेकिन अभी फिर से पापा ने जब पूछा तो उसने रिप्लाई दिया 15 एनस, लेकिन फिर भी वो श्योर नहीं था, वो बस डाउट में ही बोला। वेरी गुड, हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट, उसने पापा ने फिर बोला वेरी गुड, और फिर पूछा कि कृष्णा को कितने मैंगोज चाहिए, तो फिर बोला 4। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 4, अब बताओ कि 4 मैंगोज़ का प्राइस कितना होगा। अगर 10 मैंगोज़ का प्राइस 15 एनस है तो 4 मैंगोज़ का कितना होगा।
फादर सीम टू डिलाइट इन टॉर्चरिंग हिम। और पापा को थोड़ा बहुत मज़ा भी आ रहा था, मस्ती भी आ रही थी, क्योंकि उसका शक्ल जो है उस पर 12 बजे थे। उसके क्वेश्चन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाउ कुड ही नो वॉट दैट फूल कृष्णा वुड प्ले। और वो क्या सोच रहा है दिमाग में कि उसको क्या पता, मुझे क्या पता कि कृष्णा कितना पैसा देगा, वो समझे वो कितना पैसा देगा। लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू। मेरा आधा दिमाग तो तुम्हारा डांटने में ही निकल गया है। वॉट हैव यू इन योर हेड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल क्या रहा है। 10 मैंगोज कॉस्ट 15 एनस, और 10 मैंगो का दाम 15 एनस है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ वन। अब ये बताओ, 10 मैंगो का दाम 15 एनस है तो एक का कितना होगा। कम ऑन, इफ़ यू डोंट से इट। अब तुम अगर नहीं बताते हो तो फिर तुम देखना। उसके पापा बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रहे थे उसके क्वेश्चंस से, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा था। हिज हैंड टुक स्वामीनाथन्स ईयर। अब जो है उसके पापा ने उसका कान पकड़ लिया। कान पकड़ा क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था उन्हें, क्योंकि बहुत देर से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से आप लोग शैतानी करते हो तो आपके पेरेंट्स या टीचर आपके कान घुमाते हैं, उसी तरीके से स्वामीनाथन के पापा भी उसके कान को ट्विस्ट कर रहे थे, घुमा रहे थे। Swaminathan could not open his mouth because he could not decide whether the solution lay in the realm of addition, subtraction, multiplication or division. स्वामीनाथन अपना मुंह नहीं खोल रहा था, वो कोई आंसर नहीं दे रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल कंफ्यूज था कि उसका जो सॉल्यूशन है वो ऐड करने पे निकलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे निकलेगा, डिवाइड करने पे निकलेगा या मल्टीप्लाई करने पे निकलेगा। The longer he hesitated, the more violent the twist was becoming. In the end, when father was waiting with a scowl for an answer. और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा था, मीन्स पापा वेट कर रहे थे कि आंसर करेगा, वो आंसर नहीं कर रहा था, उतना ही उसका कान जो है अमेठा जा रहा था, यानी घुमाया जा रहा था, ट्विस्ट किया जा रहा था। He received only a squeal from his son. लेकिन फिर भी उससे कोई आवाज़ें नहीं आई। बस आह आह, आप लोगों के कान में बिठे जाते तो करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से बस वो आवाज़ें निकाल रहा था। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल मी हाउ मच अ सिंगल मैंगोज कॉस्ट एट 15 एनस फॉर 10। मैं तब तक तुम्हारा कान नहीं छोड़ने वाला जब तक तुम मुझे सॉल्यूशन नहीं बताते कि एक मैंगो का दाम कितना होगा अगर 10 मैंगोज का दाम 15 एनस है। What was the matter with father? अब स्वामीनाथन जो है वो सोच रहा है कि पापा को हुआ क्या है। स्वामीनाथन kept blinking. पापा कान उसके पकड़े हुए हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, और स्वामीनाथन ब्लिंक कर रहा है, अपने पलके झपका रहा है और सोच रहा है कि पापा को हुआ क्या है। Where was the urgency to know its price? और पापा को इससे क्या ज़रूरत है कि कृष्णा कितना पेमेंट करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। पापा को ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई है जानने की। Anyway, if father wanted so badly to know, instead of harassing him, let him go to the market and find it out. और पापा को इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जानने की कि क्या प्राइस है, तो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करने से अच्छा, मुझे इतना ज़्यादा परेशान करने से अच्छा है मार्केट जाएं और जाके पता कर लें। The whole brood of Ram and Krishna with their endless transaction was odd quantities of mangoes and fraction of money were getting disgusting. और ये जो राम और कृष्णा के ट्रांजैक्शंस हैं, मैंगोज़ हैं, सब कुछ बिल्कुल ख़राब होते जा रहा था। मीन्स उसके दिमाग में सिर्फ खिचड़ी पक रही थी, उसे सम्स कुछ समझ नहीं आ रहे थे। उसकी हालत बिल्कुल, मतलब उसने क्वेश्चन की हालत बिल्कुल बुरी करके रख दी थी। उसके दिमाग में सिर्फ खिचड़ी पक रहे थे कि मैंगोज़ हैं, राम कैसा इंसान है, कृष्णा कैसा इंसान है, अगर पापा को क्या ज़रूरत है जानने की, जानना है तो मार्केट जाएं। मीन्स सारा चीज़ वो सोच रहा था एक्सेप्ट वो सम के, कि सम निकलेगा कैसे, उसका सॉल्यूशन निकलेगा कैसे। फादर एडमिटेड डिफीट बाय डिक्लेयरिंग। अब क्या हुआ, इतना समझाने के बाद भी जब वो नहीं समझा, पापा हार मान लिए। मीन्स उन्होंने उसका कान भी छोड़ दिया और हार मान लिए कि चलो मैं ही बता देता हूँ। 1 मैंगो कॉस्ट 15 over 10 एनस, सिंप्लीफाई इट। उन्होंने उसे शॉर्ट में एक क्वेश्चन दे दिया, उसी को शॉर्ट में करके।
Here he was being led to the most hideous reason of arithmetic fraction. अब उसने क्या सोचा कि ये पापा अब कौन सा इतना बोरिंग सा टॉपिक अरिथमेटिक का ले आए हैं, ये क्या फ्रैक्शन दे दिया है मुझे, गिव मी द स्लेट। और पापा ने बोला स्वामी ने बोला फादर को कि अब मेरा स्लेट दीजिए। फादर आई विल फाइंड आउट, मैं निकालता हूँ सॉल्यूशन। ही वर्कड एंड फाउंड एट द एंड ऑफ 15 मिनट्स, और वो बना रहा था और 15 मिनट्स के बाद उसने बोला द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज़ 3/2 एनस। ही एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड, और उसने जो आंसर किया वो सोच रहा था कि पापा कभी भी उस आंसर को गलत बोल देंगे, मेरा आंसर तो गलत होने वाला है। बट फादर सेड वेरी गुड, लेकिन उल्टा हुआ, उसके पापा ने बोला कि बहुत अच्छे, आगे बढ़ो, आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इट वॉज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट। अब उसके दिमाग में थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। स्वामीनाथन अनाउंस्ड एट द एंड ऑफ हाफ एन आवर अगोनी, आधे घंटे के बाद फिर से स्वामीनाथन ने बोला कृष्णा मस्ट पे 6 एनस, कृष्णा को 6 एनस देने हैं सारे सॉल्यूशंस को निकालने के बाद। एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पूरा दोपहर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मैंगोज़ के बारे में सोच के, सॉल्यूशंस के बारे में सोच के, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच के, राम के बारे में, कृष्णा के बारे में, आम पके हैं कि कच्चे हैं इसके बारे में, डिवीज़न होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, मीन्स मैथ्स के बारे में सोच सोच के बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हुआ और अंत में रोना शुरू कर दिया। At 5 o'clock, when he was ready to start for the club, Swaminathan's father felt sorry for having worried his son all the afternoon. और जब 5 बजे शाम हुआ तो उसके पापा क्लब जाने के लिए रेडी हुए, और स्वामीनाथन के जो फादर थे, मीन्स स्वामी के जो पापा थे, उन्हें भी बुरा लग रहा था, वो भी परेशान थे, क्योंकि उसने पूरा दोपहर स्वामी को परेशान किया है मैथ्स पूछ पूछ कर, और उन्हें भी अच्छा नहीं लगा जब स्वामी रोने लगा था। वुड यू लाइक टू कम विथ मी टू द क्लब बॉय, उन्होंने स्वामी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ क्लब आना पसंद करोगे, चलोगे मेरे साथ। ही आस्क्ड व्हेन ही सॉ स्वामीनाथन सल्किंग बिहाइंड अ पिलर, वो तब पूछे जब उन्होंने देखा कि स्वामीनाथन जो है वो पिलर के पीछे सिसकियाँ भर रहा है, रो रहा है। जब आप रोते हो तो करते हो ना, तो ये क्या होता है, तो ये होता है सल्किंग। तो वो भी सिसकियाँ भर रहा था, और स्वामीनाथन के पापा को वो अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका जो मुंह है, उसका मुंह लटका हुआ है, वो बहुत ही सैड है, उसका फेस बिल्कुल अनहैप्पी है। तो स्वामीनाथन जो है आंसर किए बिना वहाँ से गायब हो गया, मीन्स पापा को आंसर किया भी नहीं और वो वहाँ से गायब हो गया, और अचानक से वापस आया कोट और कैप पहन के और अच्छे से ड्रेसअप होके, मीन्स उसे भी मन था वहाँ जाने का। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।